Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about a very important question of branch account. This is the practical question in the lecture 5 and 6 we can say. But friends, in this video we are going to learn how to calculate debtors, petty cash and insurance closing balance. Whenever the opening balance of stock, debtors, petty cash and insurance is given us into the question and the closing balances of same is not given us, so how we have to calculate all these balances in amount. So in this video we will be learn all these things, okay, and as well as we'll cover the depreciation and furniture wala topic here. So I can say the question is a very important question according to your exam point of view, and I just want to say that it's all in one. It means previously we have already covered many questions which is very basic and which is related to a single difficult question. But in this question we'll be learn all the types of question which is related to all the types of queries which is related to the branch account in this video. So let's start our today's question, friends. Here you can see the question is this. Okay? The question is there. You can check the same question in your accountancy book semester 2 accounts FY BCom, page number 182, illustration 7. So let's start our today's question, friends. First read the question. From the following details relating to the Delhi branch for the year ending on 31st March 2014, prepare the branch account in the books of head office. Only the one information is given us to here, that is we have to prepare the branch account in the books of head office. It means in the books of head office we are supposed to prepare only the branch account. So let's begin our debit side of the particulars. First we have stock. So stock is nothing but an assets, debtors assets, furniture assets, petty cash assets, and the insurance prepaid is nothing but the prepaid insurance, and it is also assets. All the informations related to the assets will go on the debit side of branch account. So all these informations we have to mention and we have to write all these informations in the branch account debit side. Then we have salaries outstanding. Outstanding salaries, again this is the opening balance. How we can assume it the opening balance, because the date is given us, that is 1st April 2013. So it's nothing but opening. Okay. So opening of stock, debtors, furniture, petty cash, insurance and the salaries is given to us. So all these informations we have to write on the debit side of branch account, because all these things are the assets. Okay. Now let's proceed. Goods sent to branch during the year 2013 and 14. Friends, I would like to suggest you, if you're very new in my YouTube channel, so please go and check my previous videos which is related to the branch account. It will help you. If you want to watch that videos too, so I'm going to share the link on my description box so you can check from there. So the second one is, and the next one is goods sent to branch during 2013 and 14. Goods sent to branch. Branch will receive the goods if the goods sent to branch. So branch will receive. Now that is why it will be mentioned in the branch account debit side, because debit what comes in. Whatever the branch will receive, it will mention on the debit side of the branch account. So it will be debit on the branch. Next one is cash sales during the year. Cash sales is given to us, that is 2,70,000, and the next one is total sales, that is 3,50,000. Friends, both the information is given to us just because to calculate the credit sales. Okay, so with the help of cash sales and total sales amount, we'll calculate the credit sales. Okay, so total sales is 3,50,000 and the cash sales, it means total sales is 3,50,000. In the total sales we have the cash sales amounting rupees 2,70,000. So what will be the amount for the credit sales? So it will nothing but the 80,000. So 80,000 will be considered as a credit sales, and we are supposed to record the 80,000 of credit sales into the debtors account debit. So here you have to write down DEBT debit. Okay, you can show the working note too. Then second one is petty cash expenses. Now petty cash
opening balance is already given to us. Now it is nothing but the petty cash expenses. Expenses, it means money will go from your side now. So petty cash account credit. Next, so the question will arise among your mind, in your mind, that how we have to mention the petty cash expenses. So friends, here we have to prepare petty cash account separately. Why? I'm going to discuss it later on. Okay, so the thing is, you have to just remember that petty cash expenses will be record in the credit side of the petty cash account. Next one is discount allowed to debtors. Basically we ignore this entry, but here we have the amount of debtor is already given to us. That is why here we have to prepare debtors account. So when we'll prepare debtors account, so we are not supposed to ignore it. Okay, discount allowed to debtors, discount allowed to debtors. Okay, so it will considered as a discount allowed, so it will go on the credit side of debtors account, DBT credit. नेक्स्ट वन इज कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से पैसा मिला, कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, इट मीन्स वी रिसीव द फंड्स फ्रॉम द डेटर्स. ओके, सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज डेटर्स के अकाउंट से तो पैसा गया, डीबीटी क्रेडिट. नेक्स्ट वन इज कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस. डेटर्स मतलब कि कस्टमर ने पैसा पे किया, बट डेटर्स अकाउंट में उसका एंट्री डेबिट में होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर जब पैसा पे करेगा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट इट वॉज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द हेड ऑफिस, तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज पैसा डेटर्स अकाउंट में ना आते हुए डायरेक्टली हेड ऑफिस को गया, सो डेटर्स क्रेडिट. नेक्स्ट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च. देखिए ओपनिंग हमको दिया था स्टॉक, फर्नीचर, डेटर सबका, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग 31 मार्च इज नथिंग बट द क्लोजिंग. क्लोजिंग हमें सिर्फ और सिर्फ किसका दिया हुआ है, स्टॉक, सो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. It means here we have to calculate debtors closing amount, furniture closing amount, petty cash closing amount and insurance closing amount. So that is why here we have to prepare separate account for all the assets like debtors, furniture, petty cash and insurance to calculate the closing amount of all these assets. Next one is goods returned by branch. Goods returned by branch मतलब branch से goods गया, so branch account credit. Goods returned by debtors, debtors से goods गया, DBT credit. नेक्स्ट, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस. कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को पैसा यानी कैश भेजा गया फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए. कौन कौन सा है, 800 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से रेंट, दैट इज 9600. सैलरी 4000 रुपया महीने के हिसाब से 48. ओके, पैटी कैश दिया हुआ है आपको 2000 रुपये और इंश्योरेंस दिया अप टू जून मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दैट इज 1200, लेकिन 1200 नहीं आएगा, अप टू जून मतलब 3 महीने का आपको इंश्योरेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. हियर द मोर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस. गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 वर डैमेज इन ट्रांजिट एंड द सम ऑफ 2000 was recovered from the insurance company. यहाँ पर goods जो है transit के time, at the time of transition the goods were damage of ₹2500, but the insurance receipts from the insurance company side, it means claim receipts from the insurance company side, it's worth just ₹2000. मतलब 2500 का goods damage हुआ, लेकिन कंपनी ने 2000 का claim किया. यहाँ नहीं लिखा है कि चेक के द्वारा किया या कैश के थ्रू, so we'll consider it cash. so यहाँ पर जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे so वहाँ पर उसे मेंशन करेंगे. एंड डेप्रिसिएट द फर्नीचर बाय 10%. सो फर्नीचर का क्लोजिंग कैलकुलेट करते टाइम हमें उसे सिर्फ 10% से रिड्यूस करना है, और वॉट एवर द अमाउंट विल रिसीव वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द ओपनिंग फर्नीचर, देन विल गेट द क्लोजिंग फर्नीचर अमाउंट. So it is nothing but we have read the question only. So let's start doing the solution here. Let me erase all these things. Yes. So this will be very fresh for us. Let's start solving the question. First we have to prepare the format. See friends, the closing balance of debtors, furniture, petty cash is not given to us. So here we have to prepare 4 to 5 accounts. First will be the branch account, as you can see on the screen. Second one will be the branch debtors account to calculate the debtors closing. Next, branch petty cash to calculate the closing amount of petty cash. Then we have to add one more account here, which is nothing but called as closing account. So friends, here we are supposed to prepare branch
debtors account to calculate the debtors closing, branch petty cash account to calculate the petty cash closing amount, and cash account also to, because here we have to mention the remittance. Whatever the remittance receipts from the head office side, we have to mention it. That is why here we have to prepare extra account which is called branch cash account. Okay, and then we have some working parts here, so we'll do it one by one. So let's start doing it. So friends, you can see in the question, very first details we have given to us, that is nothing but the stock assets details. So opening assets is opening, whatever the amount of opening is given to us, all the amounts we have to mention in the branch account debit side. So let's start doing it. So first, as you can see on the screen, opening as वजह से हम यहाँ लिखेंगे to balance brought down. Assets का opening will always go on the debit side of branch account. लाइक जैसे हम ट्रेडिंग में करते थे या पीएनएल में, ठीक है. सो स्टॉक 25, डेटर्स 10,000, फर्नीचर 6,000, पेटी कैश 1,000 एंड द प्रीपेड इंश्योरेंस इज 300 which is already given to us in the question, as you can see. And the second one is outstanding salary. It's opening, that is why here we have to write on the debit side. So you can say to outstanding salary is rupees 4,000. Let's go ahead. गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर. गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को मिला, सो ब्रांच अकाउंट डेबिट रुपीज 2 lakhs. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 2 lakhs डेबिट. नेक्स्ट पढ़ते हैं कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर. कैश सेल्स एंड द क्रेडिट सेल्स इज गिवन टू अस. नाउ मैंने पहले ही बताया था कि टोटल सेल्स में से कैश के बेसिस पे सेल्स 2,70,000 का हुआ. सो क्रेडिट पे कितना गया 80,000. सो क्रेडिट सेल्स जो जाता है वो डेटर्स के डेबिट में जाता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो आपके पास जो जो आप अकाउंट बना रहे हैं उसका ओपनिंग बैलेंस आपको लिख देना. सो जैसे कि देखिए स्टॉक डेटर्स का हम बना रहे हैं, डेटर्स का 10,000 है. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. ओपनिंग एसेट्स का ओपनिंग डेबिट. फिर आपके पास फर्नीचर का तो अकाउंट नहीं बनेगा, पैटी कैश का आपने अकाउंट बनाया. सो पैटी कैश का देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000. सो चलिए फिलहाल तो क्रेडिट सेल्स हम लिख देंगे 80,000 का ब्रांच अकाउंट डेबिट. 80,000 कहाँ से आया, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को डिडक्ट करने के बाद वैल्यू हमको मिली है विच इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स. नाउ पेटी कैश एक्सपेंसेस. नाउ पेटी कैश का अकाउंट जो हमने बनाया था ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बिकॉज दिया हुआ था डेबिट साइड क्योंकि ये एसेट है. अभी ओपनिंग पेटी कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हुआ मतलब पैसा गया, खर्चा गया मतलब पेटी कैश अकाउंट क्रेडिट 2,200 रुपया, ठीक है, which is already given to us in the question 2,200. नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया मतलब डिस्काउंट दिया मतलब पैसा गया. सो क्रेडिट साइड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बाय डिस्काउंट अलाउड 500. आगे पढ़ते हैं क्रेडिट साइड. कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स से पैसा रिसीव किया तो डेटर्स के अकाउंट से गया 65,000, यहाँ लिखेंगे हम. बाय ब्रांच कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 65,000, ठीक है, डेटर से पैसा गया. नेक्स्ट कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस. कैश डेटर्स ने के द्वारा पे किया गया डायरेक्ट हेड ऑफिस को, ठीक है. सो डेटर्स के अकाउंट से क्रेडिट कितना अमाउंट था 5,000 रुपया, ठीक है. यहाँ तक सम हो चुका है हमारा. नेक्स्ट स्टॉक एज ऑन 31 मार्च. 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 15,000. सो यहाँ पर देखिए ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितना भी चीज़ें आपको ओपनिंग में दिया था वो सारा का सारा आपको याद हो. सो क्लोजिंग जब भी हम होता है वो क्लोजिंग लिखते हैं क्रेडिट साइड. सो मैंने सारे एसेट्स पहले यहाँ पर लिख दिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी वो लिख देंगे, जिसका नहीं दिया उसको फाइंड आउट करके लिखेंगे. सो देखिए ओपनिंग में स्टॉक था, यहाँ पे स्टॉक डेटर्स फर्नीचर पेटी प्रीपेड इंश्योरेंस पेटी प्रीपेड इंश्योरेंस. सो स्टॉक का क्लोजिंग अमाउंट इज गिवन टू अस दैट इज 15,000. सो हमने यहाँ पर लिख दिया 15,000, ठीक है. आगे देखते हैं गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स. डेटर्स के द्वारा गुड्स रिटर्न कर दिया गया मतलब ये डेटर्स के अकाउंट से चला गया, डेटर्स के अकाउंट से गया मतलब 1,000 रुपये. सो यहाँ पर डेटर्स के अकाउंट में हम लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड 1,000 रुपीज़, ठीक है. आगे देख लेते हैं. इसके बाद है हमारे पास कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस.
कुछ पैसा ब्रांच को दिया गया था खर्चे के लिए, ठीक है। सो ब्रांच ने रिसीव किया और कैश के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज पैसा तो गया। सो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो मैं इसको सेपरेटली समझाऊंगी। फिलहाल ये याद रखना है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस मतलब ब्रांच को पैसा मिला खर्चा करने के लिए। क्या क्या मिला? रेंट, सैलरी, पेटी एंड इंश्योरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग ब्रांच के अकाउंट में डेबिट लिखेंगे क्योंकि ब्रांच को पैसा मिला। टू बैंक रेमिटेड, कौन कौन सा पैसा मिला? रेंट, सैलरी, पेटी कैश एंड इंश्योरेंस। जैसा जो जो वैल्यूज़ है वो हमको यहाँ पर पुट ऑन कर देनी है, ठीक है। सो हमने अभी तक सारे पर्टिकुलर्स कर लिए हैं और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि 2500 का गुड्स था जो डैमेज हो गया एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ ओनली गिवन द क्लेम ऑफ अमाउंटिंग ₹2000। ओके, सो 2000 का जो क्लेम आपको मिला, ठीक है। सो ये पैसा आपको मिला, सो इसका एंट्री होगा आपके कैश अकाउंट में बिकॉज यू रिसीव द कैश, बिकॉज द बैंक एंड कैश इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू अस इन द एडजस्टमेंट, सो वेल कंसिडर्ड इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश। सो कैश के अकाउंट में हम इसका एंट्री करेंगे, बट डेप्रिसिएशन इज गिवन टू अस दैट इज 10% पर एनम। तो 10% आपको फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन निकालना है, जिसके लिए आपको वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी। सो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग फर्नीचर दिया हुआ आपको 6000। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिली? इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 6000 अमाउंटिंग रुपीज़ फॉर फर्नीचर। सो आप यहाँ पर आएंगे, फर्नीचर लिखेंगे 6000, 6000 का 10% होगा 600, 6000 माइनस 600 5400 विल बी द क्लोजिंग फर्नीचर। सो यहाँ पर देखिए आप आओगे, यहाँ पर फर्नीचर के क्लोजिंग में लिखोगे 5400। नाउ डेटर्स एंड पेटी कैश का आपको वैल्यूज निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपने डेटर्स अकाउंट बनाया था, आपको इसको टैली करना है, डिफरेंस जो भी मिलेगा वो हो जाएगा क्लोजिंग। सो 18500 इस अकाउंट को क्लोज करने पर डिफरेंस मिला है। सो मैं जाऊँगी डेटर्स पे लिखूंगी 18500, वर्किंग नोट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमको पेटी कैश को भी क्लोज करना है। पेटी कैश को आपने जितना भी यहाँ पर है टैली करो, ठीक है। ये 2000 रुपया हमने यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि ये कैश हमको मिला। किसका मिला? इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम दिया वो मिला, इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन पेटी कैश के लिए यहाँ पर वो तो कैश में जाएगा, सॉरी यहाँ पर पेटी कैश देखिए दिया हुआ है, ब्रांच ने देखिए ब्रांच को पैसा दिया गया था खर्चा करने के लिए, तो पेटी कैश भी दिया था ना। सो पेटी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेटी कैश के लिए खर्चा मिला था 2000 रुपया। टैली करेंगे, 800 रुपये का डिफरेंस आएगा, वो होगा क्लोजिंग अमाउंट ऑफ पेटी कैश। देखिए पेटी कैश वर्किंग नोट नंबर 4 800 रुपीज़। नाउ ओनली द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस इज कैलकुलेशन इज पेंडिंग। अब आप बोलोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर तो 1200 दिया है, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस लिखना है वो अप टू क्लोजिंग में अप टू जून तक लिखना होगा। तो जून मतलब कि 3 महीना, अप्रैल मई जून। सो 1200 का 3 महीना मतलब 3/12। ये देखिए 1200 आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है, बट अप टू जून देखना है। सो जून मतलब क्या हो गया? अप्रैल, फिर मई और फिर जून, मतलब 3 महीना, 3/12। तो 300 रुपया आएगा आपका इंश्योरेंस प्रीपेड का क्लोजिंग अमाउंट। ये देखिए नाउ हमने क्लोज कर लिया डेटर्स, हमने क्लोज कर लिया ब्रांच। बेसिकली क्वेश्चन में यहीं तक पूछता है 15 मार्क्स के लिए, बट फॉर प्रिपरेशन, फॉर आवर बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कैश अकाउंट बनाना भी सिखा रही हूँ यहाँ पे, कि कैश अकाउंट आपने बनाना कैसा है, ठीक है। कैश अकाउंट बनाते समय हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे कैश दिया हुआ है। सो एक बार मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ, एक न्यू कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आए कैश कहाँ कहाँ पर है। ये स्टॉक है, डेटर्स है, ये सब हमको काम नहीं आने वाला, ये सब काम नहीं आएगा। इंश्योरेंस ने, बिकॉज हमने इसका सारा एंट्री पास ऑन कर दिया, गुड्स भी नहीं। ये देखिए कैश सेल्स, ठीक है, सेल्स करेंगे हमको मिलेगा। सो कैश के अकाउंट में हम लोग कैश सेल्स लिखेंगे 2,70,000 डेबिट, क्योंकि सेल्स करने पर पैसा हमारे पास आने वाला है। सो कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। क्वेश्चन से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। टोटल सेल्स का एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स का डेटर्स में डाल दिया, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने पूरे अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। पेटी कैश इज डिफरेंट एंड ओनली कैश इज डिफरेंट, डिस्काउंट अलाउड नहीं चाहिए। हमने सिर्फ यहाँ से टोटल कैश लिया। नाउ कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिला, सो कैश का अकाउंट डेबिट है ना, पैसा मिला, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 65,000, ठीक है। उसके बाद देखिए कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, डायरेक्टली टू
हेड ऑफिस एंड डिपार्टमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी एंट्रीज की कर रखी है, सो यहाँ पर नहीं आएगा, वो डेटर्स में जाएगा क्योंकि डेटर्स के अकाउंट से गया तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। स्टॉक नहीं चाहिए, गुड्स रिटर्न नहीं चाहिए। यहाँ पर अगेन दिया हुआ है कैश सेंट फॉर ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब बोलोगे आपके ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन फिर से देखना होता है। सो कैश सेंड किया गया मतलब कैश रिसीव किया होगा कंपनी ने, कितना 9,600, 4,000, 48,000, 2,000 और 1,200। सो आप इसको कलेक्टिवली भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कैश में कलेक्टिवली लिख दिया है इसको 60,800, और आप इसको सेग्रीगेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देन नथिंग इज पेंडिंग, बट यहाँ पर जो 2,000 रुपये कैश क्लेम रिसीव हुआ था ना, वो भी डेबिट होगा कैश अकाउंट में। सो हम यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। डेबिट हुआ क्लेम 2,000 रुपया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी कलेक्टिवली, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को डीपली डिस्कस करेंगे सो यू कैन सी कि यहाँ पर कैश एक्सपेंस भी हुआ है, जो भी कैश मिला उसका खर्चा भी हो गया। सो ये क्रेडिट में भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये सारा पैसा आपके अकाउंट से गया। लेकिन सैलरी पे लिखा है 4,000 रुपया पर मंथ। सो सैलरी आप कलेक्टिवली लिखो तो भी चलेगा, मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट आके सैलरी मैंने दो तरीके से दिखाया, प्रीवियस और करंट। आप डायरेक्ट 48 लिखोगे तो भी चलेगा। अब मैंने ये प्रीवियस और करंट कैसे दिखाया दोस्तों, सो यहाँ पर देख सकते हैं आप सैलरी का कैलकुलेशन। 4,000 रुपया पर मंथ है तो 12,000 के हिसाब से 48,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको क्वेश्चन में दिया था 4,000, जिसको आप डिडक्ट करोगे तो 44 मतलब करंट का है, प्रीवियस ईयर का सैलरी है 4,000। सो आप कलेक्टिवली भी इसे लिख सकते हैं, नो मैटर। सो ये सारी डिटेल्स हमने मेंशन की। आप जब इसे फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कैश कितना मिला। दोस्तों ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखना पड़ता है कि आपको कितना हेड ऑफिस को आपने रेमिट किया, मतलब कितना पैसा आपका गया। सो ये सारा दिखाने के लिए एक तो आपने डेटर्स को दिया था 5,000, वो हम दिखाएंगे। देखिए ब्रांच डेटर्स और ब्रांच कैश का 3,37,000 हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को क्लियर किया है। अब आपको नॉर्मली ब्रांच अकाउंट को क्लोज करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे जनरल P&L अकाउंट। सो ये था हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली 15 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसमें कैश अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जाता है, बट फिर भी आपको प्रिपरेशन इसकी रखनी है। बेसिकली हम यहाँ पर पेटी कैश डेटर्स को बनाने के लिए देंगे और फर्नीचर तक के क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, बट स्टिल इस अकाउंट को समझ के लेना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बेसिक एंड नॉर्मली 15 मार्क्स के वेटेज के लिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।